Hello students and welcome to Mathomania. Today we will be doing exercise 4F of trinomials. Here you will see trinomials means where in an expression we have three terms that is called as trinomial because tri means three and polynomials. So trinomials comes as when we have three terms in any expression, then that is called as trinomial. It means in exercise 4F you will be having the questions based on trinomials where you will be having three terms in every sum. Now when you were having more terms and you were factorizing, that was different, but in case of you are having three terms, what you have to do, you have to split the middle term. Here you will see in question number 1, that is a square plus 5a plus 6. In this the middle term is 5a and we have to split the middle term using the method when the sum of those two terms should be equal to the middle term, but when you are doing the product should be equal to the product of first and last term. So in this case, here you can see 3 plus 2 is 5, and in the last terms, that is 6, and a square is having number with it, that is 1. 6 into 1 is 1. It means when you are multiplying the numbers, it should come as 6, and when you are adding the numbers, it should come as the middle term, that is 5. So sum should be 5, products should be 6. What we have to find out, we have to prepare this ourselves mentally, and here you will see 3 plus 2 is 5 and 3 into 2 is 6. So we have got these numbers, that is 3 and 2. So we will split the middle term, that is 5a. How you are going to split it? In the numbers 3 and 2. So a square plus 3a plus 2a plus 6. Now we have got four terms. What we have done? We have written 5a. We have split 5a and wrote it as 3a plus 2a because 3a plus 2a is what? 5a. And 3 into 2 is what? 6. So we have chosen that. Now here you will see clearly we are getting the pairing here, first two terms and last two terms. A square plus 3a, a is common. We have taken the a common, a plus 3 is remaining. From the next pair we are taking 2 common, and then we are getting a plus 3 again inside the bracket. Here you will see a plus 3 is common, so a plus 3 we have taken common out, so what is remaining? A plus 2. इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? A plus 3, a plus 2. Now let's go for question number 2. Question number 2 में आप देखेंगे a square प्लस 6a प्लस 8. इसमें आपको सबसे पहले देखना है कि फर्स्ट टर्म जो है a स्क्वायर, उसके साथ नंबर कौन सा है एसोसिएटेड? 1. सेकेंड टर्म है 6a, उसके साथ नंबर क्या है? 6. और थर्ड टर्म क्या है? 8. इसमें हमको नोटिस ये करना है, ध्यान ये रखना है कि जो बीच का टर्म है 6, जब भी हम दो नंबर ऐसे लेंगे जिसको ऐड करने पर हमको बीच का टर्म मिलना चाहिए, बीच का नंबर मिलना चाहिए, दैट इज 6 मिलना चाहिए, और जब हम उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फर्स्ट टर्म से एसोसिएटेड नंबर दैट इज़ 1 और लास्ट टर्म जब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नंबर मिलता है वो हमारा मल्टीप्लिकेशन से मिलना चाहिए. सम क्या होना चाहिए यहाँ पर? 6, और प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 8. हमने नंबर दो ले लिए, 4 एंड 2. वी हैव टू प्रिपेयर मेंटली फॉर आवर सेल्फ. हम लोगों को खुद ही ये नंबर चूज़ करना है कि जब 4 और 2 को ऐड करेंगे तो क्या होगा? 6, और 4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल रहा है हमको? 8. जब हमने ये प्रिपेयर कर लिया तब हमारा सम आगे बढ़ सकता है. इसलिए ये जो राइट साइड में आप देख रहे हैं, फाइंड मेंटली नंबर्स हुज सम एंड प्रोडक्ट इज दिस, अगर आपको ये ज़्यादा समझ में आ जाता है ओनली देन यू कैन गो फॉर द नेक्स्ट स्टेप. अभी हम क्या करेंगे? जो मिडिल टर्म है दैट इज 6a, उसको हम स्प्लिट करेंगे. कैसा स्प्लिट किया? यहाँ पर हमने राइट साइड में लिखा हुआ है, हमने दो नंबर लिए हैं 4 एंड 2. 4 प्लस 2 क्या होता है? 6. इसलिए 6a को हमने स्प्लिट कर दिया 4a एंड 2a में, और हमारा एक्सप्रेशन हो गया a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 2a प्लस 8. अभी हमने पेयरिंग कर लिया और फर्स्ट पेयर में से a कॉमन निकाला तो a प्लस 4 बचा, और दूसरे पेयर में से 2 कॉमन निकाला तो फिर से a प्लस 4 बचा.
अभी आप देखो दोनों टर्म में a+4 कॉमन है, इसलिए उसको बाहर निकाला तो अंदर क्या बचा a+2, इसलिए हमारे फैक्टर्स क्या हो गए यहाँ पर a+4 एंड a+2। अभी जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज़ p² + 10p + 16। अगेन आपको फिर से नंबर्स एसोसिएटेड विथ 3 टर्म्स देखना है। फर्स्ट टर्म इज़ 1, सेकेंड इज़ 10, थर्ड इज़ 16। जो बीच का टर्म है दैट इज़ 10, उसको जब हम आपको दो नंबर ऐसे लेना है जिसको ऐड किया तो 10 आएगा, और उन दो नंबर को मल्टीप्लाई किया तो 16 × 1 दैट इज़ 16 आया। तो हमने कौन से नंबर चूज़ किए 8 एंड 2। 8 और 2 को ऐड किया तो 10 मिलता है, 8 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो 16 मिलता है। इसलिए हमने 10 को कैसा स्प्लिट किया 8p + 2p में, और फिर हमारा पेयरिंग हो गया। फर्स्ट पेयरिंग में से p कॉमन निकाला p + 8, सेकेंड पेयर में से 2 कॉमन निकाला p + 8। अभी आप देखो दोनों टर्म में p + 8 कॉमन है, उसको बाहर निकाला तो अंदर क्या बचा ब्रैकेट में p + 2। इसलिए हमारे फैक्टर्स क्या हुए यहाँ पर p + 8 p + 2। लेट अस गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, a² + 13a + 42। अभी आपको यहाँ पर देखो फिर से हमको क्या करना है, फर्स्ट टर्म के साथ नंबर क्या है 1, सेकंड के साथ 13, थर्ड के साथ 42। 13 को स्प्लिट करना है। कैसे स्प्लिट करना है कि दो नंबर ऐसे चाहिए जिसको ऐड करा तो 13 आया, ऐड या सब्ट्रैक्ट, सी इट कैन बी ऐड और सब्ट्रैक्ट बोथ। तो जब भी ऐड करा तो 13 आना चाहिए, और जब उन्हीं दोनों नंबर को मल्टीप्लाई किया तो 42 × 1 दैट इज़ 42 आना चाहिए। इसलिए हमने नंबर कौन सा लिया 6 + 7 इज़ 13 एंड 6 × 7 इज़ 42। अभी मिडल टर्म दैट इज़ 13 उसको स्प्लिट किया, 13a को कैसे लिखा 7a + 6a। और आप देखो यहाँ पर फिर से पेयरिंग बन गया है। फर्स्ट टर्म में से a कॉमन a + 7, सेकेंड टर्म में से 6 कॉमन a + 7 बचा, दोनों में a + 7 कॉमन है, बाहर निकाला ब्रैकेट में बचेगा a + 6। फैक्टर्स क्या हुए a + 7 a + 6। नाउ लेट अस गो फॉर क्वेश्चन नंबर 5, a² + 25a - 54। यहाँ पर अब देखो एक ट्विस्ट है, साइन चेंज हुआ है, माइनस साइन हमारे को इंट्रोड्यूस हुआ है यहाँ पर। फर्स्ट टर्म का नंबर है 1, सेकेंड टर्म का नंबर है 25, थर्ड टर्म है -54। ओके, सो हमारा सम क्या होना चाहिए 25, और जब हम दोनों 54 और 1 को मल्टीप्लाई किया तो हमारा नंबर क्या आया -54। अब हमको कुछ ऐसे नंबर देखना पड़ेंगे जिनको ऐड किया तो 24 आएगा, लेकिन मल्टीप्लाई किया तो -54 आना बहुत ज़रूरी है। इसलिए 27 और 2 नंबर हमने दो लिए, 27 में से 2 को माइनस किया तो बचा 25, और 27 और -2 नंबर कौन से लिए हैं हमने, एक 27 लिया है, दूसरा -2 लिया है। जब उनको दोनों को माइनस किया तो 25 आया, और उनको मल्टीप्लाई किया तो क्या आया -54। इसलिए हमारे नंबर क्या हुए 27 एंड -2। अभी 25 को स्प्लिट करेंगे, a² + 27a - 2a - 54। अगेन पेयरिंग किया, फर्स्ट पेयर में से a कॉमन a + 27 बचा, सेकेंड पेयर में से हमने माइनस साइन को भी बाहर निकाल लिया है, दोनों नेगेटिव टर्म्स है, दोनों में से माइनस साइन निकाला और 2 कॉमन निकाला। तो -2 कॉमन निकालने पर दोनों टर्म्स जो अंदर बचेंगी वो कैसी बचेगी पॉजिटिव, क्योंकि माइनस साइन कॉमन लिया है। इसलिए अंदर बचा a + 27। अभी देखो a + 27 कॉमन है, उसको बाहर निकाला, ब्रैकेट में बचा a - 2। फैक्टर्स हुए a + 27 a - 2। अगेन फॉर क्वेश्चन नंबर 6 यू विल सी, यहाँ पर फिर से माइनस साइन दिया है, x² + 5x - 176। फर्स्ट टर्म के साथ नंबर एसोसिएटेड इज़ 1, सेकेंड के साथ 5, थर्ड के साथ 176। सम होना चाहिए 5, और प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, फर्स्ट टर्म के साथ है 1 और थर्ड टर्म है -176। सो 1 × -176 क्या होगा -176। अभी दो नंबर ऐसे ढूंढो जिनको आपने ऐड किया तो आपको 5 मिल रहा है, ऐड किया सब्ट्रैक्ट किया तो 5 मिल रहा है, और मल्टीप्लाई किया तो -176 मिल रहा है। अभी नंबर यहाँ पर हमको क्या मिले हैं 16 और 11, ये हमको खुद ही ढूंढना पड़ता है। ओके, 16 और 11 को चूज़ किया, लेकिन 16 और 11 को क्या करना पड़ेगा, 16 में से 11 को माइनस करेंगे ना तभी 5 मिलेगा। नंबर कौन से चूज़ किए दो, एक 16 किया, एक -11 किया, प्लस माइनस माइनस होगा, 16 में से 11 माइनस हुआ, बचा 5। फर्स्ट हो गया क्लियर। 16 और -11 को मल्टीप्लाई किया तो बचा -176। तो हमारे ये दो नंबर अब हमको मिल गए। तो हमारा नंबर स्प्लिट क्या होगा, 5 को कैसे स्प्लिट करेंगे 16 - 11 में।
तो उसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 16x माइनस 11x माइनस 176 पेयरिंग हो गया है। फर्स्ट टू में से x को कॉमन निकाला, x प्लस 16 बचा। सेकेंड टू में से माइनस 11 निकाला बाहर, x प्लस 16 बचा। उसमें से x प्लस 16 को बाहर निकाला तो बचा x माइनस 11। फैक्टर्स क्या हुए, x प्लस 16 x माइनस 11। अब क्वेश्चन नंबर 7, वाई स्क्वायर माइनस 18y प्लस 65। अब यहाँ पर आप देखो नंबर फर्स्ट टर्म के साथ नंबर है 1, सेकेंड के साथ माइनस 18, थर्ड है 65। सम क्या होना चाहिए, माइनस 18, क्योंकि जो बीच का टर्म है अभी वो नेगेटिव दिया है। तो सम क्या होना चाहिए, माइनस 18 होना चाहिए और उसका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, प्लस 65 होना चाहिए। अभी हमने क्या किया, दो नंबर ले लिए, दोनों को नेगेटिव साइन लगा दिया। माइनस 13 माइनस 5 इज़ माइनस 18, और माइनस माइनस को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, पॉजिटिव आता है। इसलिए माइनस 13 इंटू माइनस 5 क्या हुआ, 65। अभी उसको स्प्लिट किया माइनस 18 को इन माइनस 13 एंड माइनस 5। सो वाई स्क्वायर माइनस 13 माइनस 5 प्लस 65। फर्स्ट टर्म में से y कॉमन निकाला तो बचा y माइनस 13। सेकेंड जो पेयरिंग है माइनस 5y प्लस 65, इसमें से भी माइनस साइन को बाहर निकाला। तो माइनस 5 जब बाहर निकाला तो ब्रैकेट में बचेगा y और माइनस 13। फिर से y माइनस 13 को बाहर निकाला तो बचा y माइनस 5। इसलिए हमारे फैक्टर्स क्या हुए, y माइनस 13 y माइनस 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। Here you will see m square minus 29m plus 204। अब यहाँ पर फर्स्ट टर्म है 1, सेकेंड माइनस 29, थर्ड इज़ 204। मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, माइनस 29 को ऐसे स्प्लिट करना है दो नंबर्स में कि उन दो नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस 29 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई किया दोनों को तो 204 इंटू 1 मतलब 204 आना चाहिए। गॉट इट। तो यहाँ पर हम लोगों को दो नंबर्स कौन से मिले हैं, 17 एंड 12, लेकिन हमको कैसे चाहिए, माइनस 17 माइनस 12 किया, दोनों को ऐड कर देंगे, साइन सेम है, माइनस 29 मिल गया। मल्टीप्लाई किया तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस, इसलिए 204 हो गया। मिडिल टर्म को स्प्लिट किया, एम स्क्वायर माइनस 17m माइनस 12m प्लस 204। फर्स्ट टू टर्म्स में से m कॉमन निकाला, m माइनस 17 बचा। दूसरे टर्म्स में से माइनस 12 कॉमन निकाला तो बचा m माइनस 17, m माइनस 17 निकाला कॉमन, बचा m माइनस 12। फैक्टर्स हुए m माइनस 17 m माइनस 12। नाउ लेट अस गो फॉर क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज़ b स्क्वायर माइनस 2b माइनस 48। अभी यहाँ पर देखो आप, फर्स्ट टर्म के साथ है नंबर 1, सेकेंड के साथ है माइनस 2b, थर्ड है माइनस 48। तो मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है कि उन दोनों को प्लस माइनस करने से माइनस 2 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, माइनस 48। तो इसलिए हमने क्या किया, माइनस 8 और माइनस 6, वी नो दैट 8 6 48, तो 8 और 6 को ले लिया, लेकिन हमको माइनस 2 चाहिए ना, इसलिए हमने 8 को माइनस कर दिया, नेगेटिव कर दिया, 6 को पॉजिटिव कर दिया। तो माइनस 8 प्लस 6 क्या हो गया, माइनस 2, और माइनस 8 इंटू प्लस 6 जब किया तो हमको माइनस 48 भी मिल गया। ये माइनस प्लस को परफेक्टली लगाना है, तभी आपका करेक्ट सम होगा। अभी आपने माइनस 2b को कैसे स्प्लिट किया, माइनस 8 प्लस 6b हो गए पेयरिंग। फर्स्ट पेयर में से b कॉमन, b माइनस 8, सेकेंड पेयर में से 6 कॉमन, b माइनस 8, दोनों में से b माइनस 8 कॉमन, b प्लस 6। पेयरिंग करेक्ट होगा तो आपका आंसर भी करेक्ट आएगा। आंसर इज b माइनस 8 b प्लस 6। क्वेश्चन नंबर 10, एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 102। यहाँ पर आप देखो फर्स्ट टर्म है 1, सेकेंड माइनस 11, थर्ड 102 माइनस 102। प्लस सम क्या होना चाहिए, माइनस 11, और प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, माइनस 102। तो हमने यहाँ पर दो नंबर सिलेक्ट किए, 17 एंड 6, बिकॉज 17 6 जो 102। अभी हमको 17 6 जो 102 तो मिल रहा है, लेकिन इसमें हमको पता ये करना है कि हमको उसको प्लस माइनस करने पर 11 आना चाहिए, इसलिए माइनस 17 प्लस 6 किया तो हो रहा है माइनस 11। नंबर्स कौन से हो गए, माइनस 17 एंड प्लस 6, उसको प्रोडक्ट किया तो क्या आया, माइनस 102। इसलिए 11 को करेक्टली स्प्लिट हो रहा है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 6x माइनस 102। अभी फर्स्ट टू में से x कॉमन निकाला, x माइनस 17 बचा। नेक्स्ट पेयरिंग में से 6 कॉमन निकाला तो x माइनस 17 बचा। अभी दोनों में x माइनस 17 कॉमन है, उसको बाहर निकालो, क्या बचेगा, x प्लस 6। फैक्टर्स हुए x माइनस 17 एंड x प्लस 6।
With this, thank you children, and we'll go for the next sum in our next video. Thank you. Like and subscribe.